तो दोनों सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब नजर आ रहे हैं। ये लोकसभा की कार्यवाही हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जिनके नाम को लेकर के बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और वही मंच पर नजर आ रहे हैं। 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब आज और कल सांसदों को शपथ दिलाने का काम होगा। तो 18वीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो अगले 2 दिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। जो सांसद इस बार चुन करके आए हैं वो शपथ लेंगे। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो चुका है। आज पहला सत्र प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब of this house and thereby strengthening the edifice and the roots of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. Sir, I lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons: Sri Suresh Kodikonal, Sri Talikotai Rajuthevar Balu, Sri Radha Mohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received Please have your seat. Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of members will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing an oath or affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Thereafter, members of the panel of chairperson will be called. Then ministers of cabinet rank, ministers of state independent charge, and ministers of state. Thereafter, the names of other members, state, union territory wise, in alphabetical order will be called. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Honorable members, on the name of a member being called by the Secretary General, the member may proceed from the place she or he is occupying to one of the podiums placed on either side of the Speaker's chair. A copy of the form for oath or affirmation in accordance with the 3rd schedule to the Constitution of India, as the case may be, will be kept for the use of the member. The member will face the House while making the oath or affirmation and then wish the chair. Thereafter, the member will proceed to show the original election certificate at the table of the House and sign the roll of members which is placed on the table. Now, Secretary General.
Prime Minister Shri Narendra Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री कोडिकुनिल सुरेश, श्री टी.आर. बालू, श्री राधा मोहन सिंह, मैं राधा मोहन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
श्री सुदेव बंदोपाध्याय। कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री राजनाथ सिंह, मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री अमित शाह। मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।
श्री शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सांसदों का चल रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों के शपथ लेने का सिलसिला जारी है। इस दौरान हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं के नाम का जब ऐलान किया गया तो वे यहां नहीं पहुंचे। दरअसल पैनल में जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने उस पैनल से खुद को बाहर कर लिया है। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शपथ ली और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शपथ ले चुके हैं। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है और शुरुआत में ही नारेबाजी हुई। विपक्षी सांसदों की ओर से नारेबाजी की जा रही थी। इससे पहले दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सदन के बाहर संविधान की एक पॉकेट कॉपी लेकर के जो सांसद हैं विरोधी पार्टी के, विपक्षी पार्टियों के, वे सभी वहां से मार्च करते हुए आए हैं और शुरुआत हंगामेदार हुई है। और माना यही जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो कि इस बार पिछले 2 चुनाव के मुकाबले मजबूत होकर के आई हैं, ज्यादा संख्या के साथ आई हैं, सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कवायद करती रहेंगी। मैं मनोहर लाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Z News।